السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں اور سیف اللہ بھائی سفر پہ تھے، تو میں نے کہا تھوڑا سیف اللہ بھائی سے جاتے جاتے باتیں کروں، کیونکہ سیف اللہ بھائی نے صحافت میں ایک بڑی نام کمائی ہے کوہستان سے۔ تو اس بارے میں آج کلپ کا مقصد یہ ہے کہ سیف اللہ بھائی جیسے بندوں کو صحافت میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا۔ سیف اللہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو ایک تو پالس کے ضلع سے ہیں، اگر عام لیول پہ دیکھا جائے تو کولے پالس کوہستان جو ہے وہ ایک پسماندہ تصور کیا جاتا ہے، تو آپ کو کس طرح یہ صحافت میں جانے کا شوق پیدا ہوا اور آپ کس طرح صحافت میں گئے؟ اچھا سوال ہے آپ کا۔ مجھے خیر شوق نہیں تھا اس فیلڈ میں آنے کا، یہ ایک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے اس وقت اللہ سے دعا کی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ 2015 یا 14 کی بات تھی، کوہستان ایک ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا۔ جی تو اس وقت ڈومیسائل بنانا انتہائی مشکل کام تھا۔ مجھے ڈومیسائل بنوانا تھا، میں آگے اپنا ڈومیسائل بنوانے کے لیے سارا پروسیس کمپلیٹ کیا۔ وہاں ہم چلے گئے پٹن میں، اس وقت اے سی بیٹھتا تھا۔ تو وہ پہلے دن میں کیا کہتے ہیں کہ اے سی صاحب بزی ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن میں گیا تو وہی بات، اے سی صاحب وہاں نہیں ہے۔ تو وہاں ایک بندے نے مجھے ایک بات کہی کہ آپ مجھے 500 روپے دے دیں، اس وقت کی بات ہے، آپ مجھے 500 روپے دے دیں، آپ کا ڈومیسائل بھی بن جائے گا اور گھر تک پہنچ جائے گا، آپ بس یہ دے کے چلے جائیں۔ تو مجھے تو انتہائی وہاں جیسے کہتے ہیں نا شدید غصہ آیا کہ میں اپنا ٹائم نکال کے یہاں اپنا ڈومیسائل بنانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو مجھے افسر نہیں مل رہا، اوپر سے مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ 500 روپے دے دیں، آپ کا ڈومیسائل بھی بن جائے گا۔ تو میں نے کہا یہاں تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو یہ تو ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر وہاں دل سے ایک دعا نکلی کہ اللہ مجھے کسی نہ کسی دن طاقت دینا کہ میں اس مافیا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں اور بات کروں۔ تو پھر 2019 کے آخر میں، یہ آپ کے اسٹوڈنٹ کا دور تھا؟ جی بالکل۔ 2019 کے آخر میں نے الحمدللہ بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ میں انڈر 16 کھیلا ہوں، پھر انڈر 19 میں کپتان رہا ہوں ایبٹ ڈسٹرکٹ سے۔ 2 سال میں نے 16 ڈویژن کھیلی ہے۔ تو پھر وہ خان صاحب کی حکومت آ گئی۔ خان صاحب کی حکومت آنے کے بعد کرکٹ جو ہے وہ کولیپس کر گئی، ریجن ختم کر دیے، ڈپارٹمنٹس ختم کر دیے، تو ٹائم ضائع تھا۔ میں ساتھ پڑھتا بھی تھا اور ساتھ شروع سے میری جو کنورسیشن اسکل، کمیونیکیشن تھی وہ بہت اچھی تھی، مطلب میں ہر ایک معاملے کو، ہر ایک مدعے کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کر سکتا تھا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اب یہ رائٹ ٹائم ہے، آپ نے اپنے علاقے کے لیے کام کرنا ہے۔ علاقے پتہ ہی نہیں تھا علاقے کے لیے اب کس طرح کام کریں گے۔ ہم نے فیس بک پر ایک پیج بنایا وائس آف کولے پالس کے نام سے، اور تھوڑی بہت ایڈیٹنگ سیکھی اور تھوڑا بہت مزید کمیونیکیشن میں اپنے آپ کو انہینس کیا، اور پھر بسم اللہ کر کے کام شروع کیا اور دیکھا تو لوگوں نے سراہا، ہماری چیز لوگوں کو اچھی لگی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے کام شروع کیا تو لوگوں کی ڈیمانڈز آنے لگی کہ آپ پہلے وائس آف پالس تھا، اس طرح پھر وائس آف کولے پالس ہم نے کیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ کوہستان لیول پر آپ کو بات کرنی چاہیے، پھر ہم نے مشاورت کے ساتھ کوہستان ٹی وی نام رکھا۔ پھر مزید کام کیا، لوگوں نے مزید کام کو سراہا، پھر اپنے نام کے ساتھ سیف اللہ اساقی کو ہٹا کے سیف اللہ کوہستانی رکھا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جرنی ہے، یہ ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد میں آیا ہوں۔ شوق وہ کچھ نہیں۔ تو پہلے جب صحافت شروع کی تو ایک قسم اس طرح آپ کا فیلڈ بھی نہیں تھا، ایک نئے فیلڈ میں گئے تھے۔ تو اس دور میں لازمی بات ہے کہ کسی کے اوپر رپورٹ کرنا، کسی کے خلاف بات کرنا، اس میں تو اقرب و پروری ہے، اس میں لازمی بات ہے آپ سے ناراضگیاں بھی ہوئی ہوں گی اور کچھ ذرائع سے دھمکیاں بھی ملی ہوں گی، اس سے کچھ ڈسٹرب کیا ہو، اس طرح کوئی واقعات آپ کے اوپر آئی ہو؟ بالکل، یہ فیلڈ ہی ایسی ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک بالخصوص شروع میں نے تو بہت زیادہ چیزیں رپورٹ کی ہیں کرپشن کے حوالے سے۔ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ ایون تک کہ ان کو نہیں چھوڑا، ہر ڈپارٹمنٹ پر میں نے رپورٹ کی ہے۔ مشکلات تو تھی، مگر میرے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے، دیکھیے کام جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر اس کام میں اللہ کی رضا شامل ہوگی تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ مخلوق کو خوش کرنے لگ جائیں گے کام میں، اگر آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ مجھ سے مخلوق خفا نہ ہو، فلاں خفا نہ ہو، فلاں خفا نہ ہو، پھر آپ ذہنی مریض بن جائیں گے، نہ آپ کام کر سکتے ہیں، نہ آپ کاج کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی کام کریں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندہ جب کام کرتا ہے، ہمارا یہی مشن تھا، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، اس خطے کے لیے کام کریں گے۔ الحمدللہ آپ یہ چیزیں سب لوگوں نے بھی نوٹ کی، آپ نے بھی نوٹ کی ہیں۔ ہم نے جب سے کام شروع کیا اس وقت کوہستان میں اس طرح ڈیجیٹلائز میڈیا کسی نے رن نہیں کیا تھا۔ ہمارے دوستوں نے پہلے بہت اچھا کام کیا، مگر ہم نے اس چیز میں تھوڑی سی تبدیلی لائی ہے، ہم نے رنگت لائی ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ آج کوہستان میں اتنا شعور بیدار ہو گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے اگر بندہ کسی پہ پہلے تنقید کرتا تھا تو اپنی آئی ڈی سے نہیں کر سکتا تھا، فیک آئیڈیا بناتے تھے۔ اب الحمدللہ بہت دور آ گیا، میڈیا نے اتنا شعور پھیلا دیا ہے، اگر کوئی بندہ تنقید کرتا ہے تو اپنی آئی ڈی سے لکھتا ہے۔ یہ الحمدللہ ہم نے بڑی کنٹریبیوشن کی ہے کوہستان میں میڈیا کے حوالے سے، بلکہ ایک
ज़बरदस्त आगाही हमने दी है कि आप अपने हक़ के लिए बोलें। जब हम बोलते थे ना सामने आके कि फ़लाँ ने करप्शन की नाम लेके, तो लोगों में ये भी जज्बा आता था, यार ये बंदा बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बाकी थ्रेट्स मिलते हैं, ये जर्नलिज्म है ही ऐसी, और कोहिस्तान में खासकर बात वही है। सफला भाई एक बात मैं आपसे पूछूंगा इसमें, एक तो ये होता है कि आपको कोई धमकी दे देता है कि मैं आपको छोड़ता नहीं हूँ, तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, वो जो कहता है इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। एक हमारे कोहिस्तान की सबसे बड़ी मसला जो है, आपके वालिदीन को मजबूर करते हैं, यार आप हमारे फलां रिश्ते में हैं और आप अपने बेटे को थोड़ा इस रास्ते से हटाएं, या आपके किसी ऐसे रिश्तेदार को कि जिसको आप मना नहीं कर सकते, फिर उसमें ज़हनी टॉर्चर कितना होता है बेटा, उस तरह कोई फील? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, मुश्किल सवाल है। बाज़ औक़ात तो इस तरह होता था, अगर मुझे पता था कि सेंसिटिव मामला है, मैं इसको रिपोर्ट करूँगा तो मुझे घर से कॉल आएगी, तो मैं तो बाज़ औक़ात इस तरह करता था, वो चीज़ रिपोर्ट करके ना मैं फ़ोन ऑफ कर देता था। और मैं जब मैंने सहाफ़त शुरू की उसके बाद ज़्यादा मेरी ट्रैवलिंग होती थी, फिर बीच में मैं 1 साल इस्लामाबाद में रहा, मैंने पढ़ना भी था साथ, और KPL के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मैं इस्लामाबाद में बैठ के रिपोर्ट करता था। उस साल में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं, और फिर मैं नंबर बंद कर देता था कि मुझे घर से कॉल ना आ जाए। खैर आती थी, मुझसे पूछा जाता था। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी जो फैमिली है, मेरा जो ख़ानदान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा लिखा है, तो मुझसे हमेशा एक ही सवाल करते थे, अच्छा ये चीज़ आपने रिपोर्ट की, आपके पास एविडेंस है, डू यू हैव एनी एविडेंस? मैं कहता था है, बिल्कुल है। कहते थे मुझे भेज दे। मैं जब भेजता तो कहते थे ठीक है, बस अपना काम करो। तो फिर कोई मजबूरी नहीं, क्योंकि देखिए जब आप पढ़े लिखे हों, आपके अंदर सेंस हो, आपको गलत और सही की समझ हो, तो फिर अगला बंदा आपको मजबूर नहीं करता, वो कहता है अच्छा बंदा राइट पे है। आखिर पढ़ा लिखा बंदा जो है वो तो, हम सब मुसलमान है ना, करेक्शन ऊपर अल्लाह के साथ है। अगर वो गलत काम को रोकेगा तो बात तो उस पर आनी है ना, कल रोज़े माशर के दिन बात उस पर आनी है ना, मैंने इस बंदे को रोका था। देखिए हदीस भी है, मुंह से रोक सकते हो तो रोको, हाथ से, पूरा दिल से मान सकते हो तो। ये हमारे अंदर जो हमारे अंदर सलाहियत है, जहाँ हम मुँह से रोक सकते हैं, मुँह से भी रोकते हैं, और कलम के ज़रिए से भी रोकते हैं। ये जो सहाफ़त है ना, अगर सही सहाफ़त की जाए, ये कलमुल जिहाद है। हम तो इसी को अल्लाह की रज़ा के लिए समझ कर रहे हैं, और खुदा गवाह है भी हम रास्ते में। मैंने आज तक कोहिस्तान से सहाफ़त से 1 रुपया नहीं कमाए हैं। मैंने अपनी स्किल, ऑनलाइन काम करता हूँ, फिर PCB के साथ हूँ, फिर KPL, वहाँ से हमने कमाए हैं। अदरवाइज़ यहाँ कोहिस्तान से सिर्फ़ और सिर्फ वो दुआ की थी कि अल्लाह मुझे मौका ज़रूर देना। अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, अब मैं उस मौके को अवेल करके कोहिस्तान की महरूमियों को दूर करने के लिए अपना किरदार। तो सैफुल्लाह भाई, ये एक बात भी लाजमी है कि किसी भी फील्ड में बंदा हो, इतना बिजी नहीं होता है जितने सहाफ़त में होता है। तो बाद में किसी जगह आपने पछताया भी होगा कि यार ये किस फील्ड में आ गए, सुबह 7 बजे 8 बजे उठते हैं, फील्ड पे जाते हैं, मसलन रात 1-2 बजे तक रुकना पड़ता है, 1-2 बजे तक फील्ड में काम करनी पड़ती है, इसमें कभी पछताया होगा? पछताया खैर नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह से दुआ की थी तो अल्लाह ने दुआ कबूल की, पछताना नहीं चाहिए। अब लोगों ने इज़्ज़त भी दी है तो काम करना चाहिए। अभी आपके सामने जा रहे हैं हम, कल दुबेर गए थे, वहाँ भी हम सैलाबी रेल के अंदर फंस गए थे। बिल्कुल। और हमें किसी ने कहा नहीं है कि आप आ जाएं, आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, आप रिपोर्ट करें, बस अल्लाह की रज़ा के लिए आते हैं। दूसरा हमारा खित्ता है, इस खित्ते ने हमें शनाख्त दी है, कोहिस्तान ने हमें शनाख्त दी है, तो हम इस खित्ते के लिए खिदमत करने के लिए आते हैं। अपना जो दिया है अपने हिस्से का वो जलाने आते हैं। खैर पछतावा नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, पर आप जैसे भाई हैं, फिर अवामुन्नास है, कोहिस्तान की यूथ को वो इतना प्यार करती है, तो फिर हमें पछतावा थकावट होती नहीं है। कहते हैं चले यार ये हमारे साथ कनेक्ट है, ये हमसे इतनी मोहब्बत प्यार करती है, इज़्ज़त देती है, तो हमारा भी काम है हम इनके लिए काम करें। इस वजह से बस पछतावा भी नहीं होता। और अल्लाह जब से सहाफ़त शुरू की है, जी, तो आप जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कोई करते हैं, तो आप अपने एक इरादे से, एक खैर इरादे से करते हैं, उस पर नेगेटिव वो भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, और पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं। जी। तो कभी इसमें आप परेशान हुए कि यार ये मैं किस सोच से कर रहा हूँ, और ये ऊपर कमेंट किस तरह आ रहे हैं? कोई तो लाजमी बात है ज़ातियात पे जाके उस नेगेटिव, और खैर कोई गाली भी निकाल ले, ज़ातियात भी कर ले, कोई मसला नहीं होता। कभी कभी इस चीज़ से ज़रूर दुख होता है कि जो बेजा इल्ज़ामात लगा लेते हैं ना, फलां से ये लिया, फलां से ये लिया। ये तो मैं रोज़े अव्वल से कहता हूँ कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। ना मैं लगाता हूँ, मैं अगर कोई बात करता हूँ तो मैं पूरी तहकीक के साथ करता हूँ। उस चीज़ को मैं अकल के साथ, दलील के साथ वो साबित भी कर सकता हूँ। हमारी एक फील्ड है, हम अगर बात करते हैं तो उसके पीछे हमारी पूरी एक रिसर्च होती है। बगैर सोचे बगैर समझे कोई बंदा अगर इल्ज़ाम लगा दे, उस पर थोड़ा सा दुख होता है। पर मैंने शुरू में भी आपको एक ही बात कही थी कि जब आप मखलूक को खुश करने लग जाएंगे ना, आप ज़हनी मरीज़ बन जाएंगे। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें, अल्लाह देख रहा है, बस आप अल्लाह के सामने जवाब दें। अगर आप अल्लाह की अदालत में आप दिल से मुतमईन है कि मैंने काम गलत नहीं किया, मैंने काम ठीक किया, मखलूक जो कहे आपने परवाह नहीं करनी, बस हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ है।
अल्लाह के सामने हमने मुतमईन होना है, अल्लाह के सामने एक काम से हम बरी ज़िम्मा हो गए ना, तो बस हम हमारी ये निजात। जिस तरह मैं आपको एक चीज़ बताऊँ TM में पाकिस्तान के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक बात की, आज फिर कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बात मैंने की है। जब देखा कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने अल्लाह से इसी तरह कहा कि अल्लाह मैंने अपना हक़ अदा कर दिया है। आपने देखा होगा कि मैंने कई प्रोग्राम्स में बात की है, कई जगह पर लोगों को शऊर देने की बात की है, मगर इस माशरे में ये माशरा करप्ट है, लोग 10 से मस नहीं हो रहे। मेरे बोलने से अल्लाह कुछ नहीं होता। मैं आपके सामने बरी ज़िम्मा हो गया, मैंने अपना हक़ अदा कर दिया, बस उसके बाद खामोश हो गया। यहाँ मैं एक और सवाल करूँगा, लोगों की जहन में जो बात है, मैं लोगों के सवाल आपसे करूँगा कि भाई आप ज़हनी तौर पे सेनेटर तलहा महमूद के ख़िलाफ़ हैं, शायद ये आपकी ज़ाती कोई आपस मामला है, ये हकीकत में है क्या? इस मैं बड़ा क्लियर कहता हूँ, देखिए मुझे न किसी तलहा महमूद से इख्तलाफ है, न किसी जमात से इख्तलाफ है। इख्तलाफ रोज़ अव्वल से रखा है वो बैरूनी इस्तेमाल। इख्तलाफ रखना मेरा बुनियादी हक़ है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। इख्तलाफ रखना हम सबका बुनियादी हक़ है। इसकी यही बात है, कोई इख्तलाफ उनसे नहीं है, बैरूनी इस्तेमाल से इख्तलाफ है, और इंशाल्लाह रहेगा। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान से कोई बंदा उठे, पाकिस्तान के खत्ते के लिए बात करे, खिदमत करे। बेशक आप पुराने सियासतदानों को न लाए, अपना कोई नया बंदा लेके आए जो असम्बली फोरम पर आवाज़ बुलंद कर सके, और कर सकते हैं। पाकिस्तानी लोग इस तरह के हैं, इंशाल्लाह वक्त आएगा, दूर नहीं है कि ज़रूर अपने खत्ते के लोग अपने खत्ते को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आखिर में आप जो आपके फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, मेरे नाज़रीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सहाबत के हवाले। हमेशा खुश रहें, इन्होंने जितनी इज़्ज़त मुझे दी है मैं इस काबिल नहीं था, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीदों पर पूरा उतरूँ, कि जो बात भी करूँ उनको पसंद आए। खैर अब तो आजकल तो कुछ मामला इस तरह चल रहे हैं कि बहुत सारे मेरे चाहने वाले भी कह रहे हैं आप अगेंस्ट जा रहे हैं, तल्ला के खिलाफ फला। खैर वक्त है, कोई बात नहीं है, मगर मैं नज़रिए वाला बंदा हूँ, मैं अपने नज़रिए पे कायम रहता हूँ, मैं नज़रिए के साथ दलील के साथ बात करता हूँ। इंशाल्लाह सबको यही पैगाम है, बस इख्तलाफ रखें, इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, मगर इख्तलाफ दलील के साथ रखें। इख्तलाफ आप रखते हैं, इख्तलाफ इखलाक के साथ रखें, फिर मज़ा भी आता है इख्तलाफ रखने का। तो यही इनसे दरख्वास्त है कि दुआ करें हमारे लिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा करें। ठीक है, सफला भाई, बहुत बहुत